The Haryana poll dangle is underway. Voting still on till about 3 p.m. 49.13% voter turnout. Yamuna Nagar sees highest turnout at 56.79%. Gurgaon has once again witnessed the worst turnout till now, standing at 40%. Vote for change or continuity is the big question. Can BJP beat the 10-year anti-incumbency? Well, these visuals coming in, but mostly, till now, the voting percentage, viewers, is way less than what it was at the same time, which is the 3 p.m. mark, when it was in 2019 or 2014. What does this actually mean? Let's cut across to my colleague Asim Bassi joining us on the phone line with this news break. Asim, if you look at the voting percentage right now, which was recorded till 3 p.m., 49.13% voter turnout. Way less than what it was 3 p.m. 2019 and 2014. Sluggish as of now, what could it mean? Asim, can you hear me? All right, there's a problem on that phone line. We're going to try and rectify that. But to give our viewers perspective, voting has been very sluggish this time in Haryana. Of course, there have been pockets that have done very well in terms of voter percentage, like Yamuna Nagar, which was seeing the highest turnout at 56.79% till 3 p.m. But overall, till 3 p.m., the voting percentage in Haryana was 49.13%. And that, viewers, is about 8 to 9% less than what it was in 2019 at about 3 p.m. What does it mean for the state of Haryana? Is it likely to pick up? Let's cut across to Asim Bassi, my colleague who's joining us on the phone line. Asim, 49.13% voter turnout till 3 p.m. Way less than what it was the last time around, exactly at the same time in 2019 or even 2014. What could this mean? All right, we have a problem on that phone line again. We will try and rectify that, but let's quickly move on in the bulletin right now. 90 assembly seats in Haryana, polling underway. The polls will determine the political fate of Chief Minister Nayab Singh Saini, who is the incumbent, Bhupinder Singh Hooda, who is the leader of opposition and twice as well before the Chief Minister for the Congress. Vinesh Phogat is one seat everybody has their eyes on. JJP leader Dushyant Chautala, who the last time around with his 10 MLAs was kingmaker. What comes off him? And 1,027 other candidates in the fray. To give you an example, viewers, 1,027 candidates in the fray. Out of that, less than 100, at about 91, are women. That's how low the percentage of participation in the electoral process where women are concerned. Meanwhile, Chief Minister Nayab Saini and former CM Manohar Khattar were the first to exercise their franchise. Congress candidate Vinesh Phogat too cast her vote, urging people to come out in large numbers. BJP is eyeing a third consecutive term, but the Congress hoping enough anti-incumbency to reclaim power. सर, ये बताइए, एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, बहुत कम समय लगा है, कितना आपको लगता है आप सेल थ्रू कर देंगे, कितना मुश्किल है? नहीं, देखिए, हरियाणा के लोगों ने जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह दिया है, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये लोगों ने तय कर दिया है। और लोग देखते हैं, काम भी देखते हैं, क्या क्या योजना बन करके सुविधाएं पहुंची हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति का जीवन सरल, सुगम और मजबूत करने का काम इन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है और लोगों ने बड़ा विश्वास है। लोग तो ये भी कहेंगे कि डबल इंजन है तो एक इंजन तो मनोहर लाल खट्टर है, वो तो सीधा सेंटर चले गए और सारी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। नहीं, देखिए, मैं तभी डबल इंजन की बात कर रहा हूँ। डबल इंजन है और हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीव्र गति से हम हरियाणा का विकास करेंगे। ये लोग भी इस बात को जानते हैं, लोग समझते हैं कि सेंटर के अंदर मोदी जी बैठे हैं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद किसानों का गुस्सा है, अग्निवीर स्कीम है, ऐसी कई चीजें हैं। हालांकि आपने एमएसपी भी बोला, फिर बोला कि भाई हम किसानों को भी देखेंगे, हम अग्निवीर में भी परसेंटेज देंगे, कोई ऐसा नहीं है जो बिना नौकरी के जाएगा। तो इस लिहाज पे
एक और तर्ज आता है जहाँ पे बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है हरियाणा में। तो ये सारी जो चीजें हैं जब आप लोगों के सामने जाते हैं, और आज का दिन है जहाँ पे लोग अपना तय भी करेंगे कि कौन उनके साथ होगा, तो कैसे आप लोगों को? नहीं, देखिए, आपने कहा है कि किसान गुस्से में नहीं है। पहला हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने किसानों के लिए 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात की, और जिसकी हमारे किसान संगठनों ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने आकर के कहा कि ये निर्णय जो हरियाणा ने किया है, ये कांग्रेस ने भी अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। आप विक्ट्री साइन दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सीटें लाएंगे? आप देखना, ऐतिहासिक सीटें आएंगी, ऐतिहासिक सीटें। और आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी अब निकल पड़े। जैसे सीटें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर आई, हरियाणा भी उसी की तर्ज के ऊपर इसको रिपीट करेगा। सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद जाकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे, और जहां तक मेरी जानकारी है प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, और बिल्कुल पहले की तरह पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो, ऐसी मेरी सोच। सर ये बताइए, कितनी बड़ी चुनौती है मैदान में है आपके सामने चित्रा सरवारा, आपको लगता है कि कोई मुकाबला है? पिछली बार तो उन्होंने आपने मात दे दी थी, पर लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा बुरी मात दी जाएगी उसको। जी, अंबाला के लोग अमन पसंद लोग हैं, वो यहाँ की शांति भंग करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए बाप बेटी दोनों को हरा रहे हैं। जो बेटी अपने एक तरफ जो वैश्यावृत्ति कराते हुए जिसके होटलों में पकड़े गए उसको बैठाती है, एक तरफ नकली देसी घी बेचने वालों को बैठाती है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वालों को अंबाला की जनता वोट नहीं देती है। देखिए, बीजेपी की भी अपनी परेशानी है, चाहे किसान है, पहलवान है, जवान है, हर तो कोई परेशान है। किस तरह से उसको? सब हमारे साथ है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो होता है। किसान भी बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। किसानों की मांग हो सकती है, कुछ लोग उसके लिए अपनी बात कह भी रहे होंगे, प्रजातंत्र में कहने का अधिकार भी है, लेकिन मोस्टली किसान हमारे साथ है। देश के लोगों ने तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनाई है, और हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भरोसा मोदी में भी है और भाजपा में भी है। इसलिए मुझे लगता है कि 100% तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रचेगा, कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है, एक वोटिंग का जो दिन होता है, और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ, और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले, कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। बड़ा दिन है आज का आपके लिए। बहुत बड़ा दिन है, और मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। और पिछली बार 10 सीट आई थी आपकी सर, इस बार क्या उम्मीद है जेजेपी को? मैं मानता हूँ पहले से अच्छा परफॉर्म होगा। हरियाणा में आज जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश से कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आप थोड़ा सा चेक खुद करके देखें, एक तरफा 36 बिरादरी हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं हरियाणा वासी, और बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए, हरियाणा में खुशहाली का दौर लौटे, हरियाणा में विकास का दौर लौटे, हरियाणा देश में सबसे विकसित बने, इस लक्ष्य के साथ हरियाणा वासी मतदान कर रहे हैं। Will do very well because last 10 years BJP has done very well in Haryana for all sections of the society. So I am sure that people of Haryana will vote for BJP today. There is a huge section of society which feels that BJP has worked really well. I mean, they were able to get jobs, on merit, and the poor section of the society, they have really benefited from the various schemes. People have a lot of confidence in the leadership of Mr. Modi. आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं, और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि हम सब अपना वोट डालें
और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए, बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आज मैंने अपने गांव में अपना वोट किया है। मैं सभी से ये कहूँगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ईमानदार सरकार के लिए वोट करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें और सबको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट करें।